ક્રિષ્ના સ્કૂલમાં આજ રોજ પલસાણા પોલીસ સ્ટેશન હોમગાર્ડ અધિકારીઓ ગોરખભાઈ અને સમાજના આગેવાનો ઉપસ્થિતમાં સ્કૂલ દ્વારા વાલીઓને સેલ્ફ ડિફેન્સ કાર્યક્રમ યોજાયો। પલસાણા તાલુકાના જોડવા ગામમાં આવેલ ક્રિષ્ના સ્કૂલ દ્વારા વિદ્યાર્થીનીઓની સુરક્ષા અને આત્મવિશ્વાસ વધારવા માટે સેલ્ફ ડિફેન્સ સ્વ બચાવ તાલીમ કાર્યક્રમનું સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમ દીકરીઓ દરેક પરિસ્થિતિમાં પોતાની સુરક્ષા જાતે કરી શકે અને તેમનામાં હિંમત કેળવાય તે હેતુથી આ તાલીમ આપવામાં આવી હતી। વિદ્યાર્થીનીઓને કરાટે, પંચિંગ, કિકિંગ અને વિષમ પરિસ્થિતિઓમાં હુમલાખોરથી કેવી રીતે બચવું તેની વિવિધ ટેકનિકો શીખવવામાં આવી હતી। નિષ્ણાત ટ્રેનર્સ દ્વારા પ્રાયોજિક નિદર્શન સાથે દીકરીઓને માહિતગાર કરવામાં આવી હતી। સેલ્ફ ડિફેન્સનું મહત્વ આજના સમયમાં દીકરીઓ માટે અભ્યાસની સાથે સાથે શારીરિક ક્ષમતા અને સ્વરક્ષણની કળા શીખવી ખૂબ જ અનિવાર્ય બની ગઈ છે। શાળાના પ્રયાસને વાલીઓ અને સ્થાનિક આગેવાનોએ બિરદાવ્યો હતો। કાર્યક્રમની ખાસિયત આત્મવિશ્વાસમાં વધારો, તાલીમ બાદ વિદ્યાર્થીનીઓમાં નવો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો। જાગૃતિ, કટોકટીના સમયે ગભરાવાને બદલે સમજદારીથી કેવી રીતે સામનો કરવો તે અંગે જાગૃતિ લાવવામાં આવી હતી। આ કવાયતથી માનસિક મજબૂતીની સાથે સાથે શારીરિક ફિટનેસના પર સુધારો થાય છે। આ કાર્યક્રમમાં પલસાણા હોમગાર્ડ યુનિટ અધિકારી ગોરખભાઈ અને સમાજના આગેવાન સહિત ટીચર્સ અને પ્રિન્સિપાલ તેમજ ટીચરમાં પણ અનોખો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો। સુરત જિલ્લાના પલસાણા તાલુકા ખાતે હલધરું જે છે કહી શકાય ક્રિષ્ના સ્કૂલમાં નવી એક પહેલ શરૂ કરવામાં આવી છે। જે પ્રમાણે વાત કરીએ ક્યાંક ને ક્યાંક સેલ્ફ ડિફેન્સને લઈને સ્કૂલ દ્વારા જે છે ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે। હાલ તમને દ્રશ્ય બતાવવાનો પ્રયત્ન કરશું। અહીંયા ટ્રેનર સહિત સ્કૂલના જે પ્રિન્સિપલ છે તે સાથે સ્ટુડન્ટ જે છે તે લોકો પણ અહીંયા હાજર છે। આપણે સીધી ટ્રેનર સાથે વાત કરીશું કઈ રીતની પહેલ શરૂ કરવામાં આવી છે અને કઈ રીતના લોકોને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી છે। જી આપનું નામ? सर मेरा नाम प्रीति गुप्ता है और निर्भया सेना के साथ में 10 सालों से जुड़ी हुई हूँ। मैंने भी सर के साथ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ली थी, फिर मैंने कराटे की ट्रेनिंग ली और 1 साल मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की और आज मैं फर्स्ट एंड ब्लैक बेल्ट हूँ। और सर के साथ निर्भया सेना के साथ जुड़ करके ऐसे स्कूल्स में, सोसाइटीज़ में मैं बच्चों को 7 डेज़ का जो कैंप है उसमें हम पार्टिसिपेट करते ट्रेनिंग देते हैं। सेल्फ डिफेंस कितना जरूरी है, किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है? सेल्फ डिफेंस उतना ही ज़रूरी है आज की डेट में जितना हमारे लिए पढ़ाई ज़रूरी है और जीवन जीने की एक बहुत ही मतलब आवश्यक वस्तु कह सकते हैं। इसमें ये हम सिखाते हैं कि अगर बच्चियां हैं, बाहर आते जाते हैं, रास्ते में कहीं पर भी मार्केट में जाते हैं या फिर अकेले ट्रैवल करते हैं स्टडीज़ के लिए, स्कूल, ट्यूशन, कॉलेजेस जाते हैं, तो वहाँ पर अगर उनके साथ छेड़खानी होती है, बच्चे कमेंट्स करते हैं उनके ऊपर, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं उनके प्राइवेट पार्ट्स में वो लोग हाथ लगाते हैं, धक्का मार के निकलने की कोशिश करते हैं, तो उस सिचुएशन में उनको बचना कैसे है वो सभी ट्रेनिंग कराते हैं। और बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है कि बच्चे अपने आप को अगर किसी सिचुएशन में फंस गए हैं, उनको पकड़ लिया जाता है, अटैक करने की कोशिश की जाती है, तो वो बचेंगे कैसे। જે પ્રમાણે જોયું કે ટ્રેનરનું કહેવું છે કે આજનારી જે યુવા પેઢી છે તે ક્યાંક ને ક્યાંક આગળ નીકળી છે। સાથોસાથ કહી શકાય જે મહિલા જે છે યુવતીઓ જે છે પોતે એકલી બહાર જાય તો ક્યાંક ને ક્યાંક એ લોકોને સાથે છેડતી થાય છે। એમની સાથે આપણા જે શિષ્ય છે ટ્રેનર એમની સાથે પણ વાત કરીશું કઈ રીતની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે। આપનું નામ? मेरा नाम प्रियंका रविंद्र तिवारी है। मैं कक्षा 12वीं में हिंदी मीडियम कृष्ण स्कूल से हूँ। और हम जो सेल्फ डिफेंस को ट्रेनिंग दी जाती है किस तरीके की ट्रेनिंग? सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग है वो एक फिजिकल और मेंटली दोनों तरीके की ट्रेनिंग है। फिजिकली हमें स्ट्रॉन्ग किया जाता है और तमाम तरह के अटैक से खुद की रक्षा करने के लिए सिखाया जाता है। साथ में मोटिवेट किया जाता है कि हाँ हम किसी से डरे नहीं, डट कर के सामना करें। आज की डेट में जितना सेल्फ डिफेंस जरूरी है इतना मोबाइल भी जरूरी है। किस तरीके का यूज़ किया जाता है टीचर्स द्वारा, किस तरीके का इसका अभिप्राय दिया जाता है? अगर मोबाइल का हम सही यूज़ करें, सही यूज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जिसमें उसमें हम पढ़ाई के बारे में देख सकते हैं, साथ में खुद के करियर को चूज़ करने के लिए जो हमें गाइडेंस की ज़रूरत है हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर हमें सेल्फ डिफेंस के लिए भी काम आता है कई बार। साथ में हमें न्यूज़ेस वगैरह भी जानना ज़रूरी होता है कि हमारे देश में चल क्या रहा है, हमारे आसपास की एरियाज़ में क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं गर्ल्स जो है सोशल मीडिया पे ज़्यादा होती है, अदर गर्ल्स को क्या कहना चाहोगे? सोशल मीडिया पर होना गलत बात नहीं है, पर गलत तरीके से होना गलत बात है। જે પ્રમાણે વાત કરીએ કે આજનારી જે યુવા પેઢી છે કૃષ્ણા સ્કૂલ દ્વારા જે પ્રમાણે પહેલ શરૂ કરવામાં આવી છે આપણી સાથે અહીંયાના સાહેબ છે એમની સાથે પણ વાત કરીશું કઈ રીતની આ સમગ્ર પહેલ છે ક્યારથી શરૂઆત થઈ હતી અને કેટલા સમયથી ચાલે છે। જે આપનું નામ? मुकेश राठौर मेरा नाम है। 2012 में जब दिल्ली में गैंगरेप हुआ था तभी से मैंने ये एक संकल्प लिया था कि कम से कम 1,51,000 लड़कियों को मैं फ्री में ट्रेनिंग दूंगा। तभी तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के हाथ से 1,51,000 लड़कियों को हमने सर्टिफिकेट वितरण करके उनका सम्मान करवाया।
और फिर से मैंने संकल्प लिया कि समस्त भारत के अंदर करीबन 51 लाख लड़कियों को निःशुल्क ट्रेनिंग देने का मेरा संकल्प है। और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग चल रही है, मैंने काफ़ी जगह ट्रेनिंग दी है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, चाहे राजस्थान की बात करें, दिल्ली की बात करें, जयपुर की बात करें, हर जगह हमने ट्रेनिंग दी है। लेकिन आज मुझे मौका मिला है कि जोलवा विस्तार, जो कड़ोदरा विस्तार है, यहाँ पे मजदूर वर्ग है, वहाँ की जो बच्चे हैं वो ट्रेनिंग लेने के लिए बाहर नहीं जा पाते, यहाँ से कोई सुविधा नहीं है। तो मुझे खुशी है कि जब मैंने यहाँ पे ये ट्रेनिंग दी तो यहाँ की लड़कियों का जो सपोर्ट मिला, यहाँ के बच्चों का जो सपोर्ट मिला है, बहुत ही ऊर्जावान था। और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि जोलवा और कड़ोदरा विस्तार में हमारी जो लड़कियाँ हैं और वो इतनी सशक्त बनेंगी, और यहाँ से हम ऐसे ट्रेनर को बना रहे हैं जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर एज ए ट्रेनर के तौर पर वो जा पाएंगे। ये मेरी कोशिश है। सर, कौन सी ऐसी घटना बनी थी जिसको लेके ये नई पहल शुरू करने के लिए आपने कभी ट्राई किया? देखिए, पहले दिल्ली में जो घटना बनी थी, तो उससे लेके मैंने सेल्फ डिफेंस का कोर्स करवाया था, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग चालू की थी। हाल में जो अभी आपने देखा था, बंगाल में एक घटना घटी थी जहाँ पे एक ट्रेनी डॉक्टर को रेप करके उसके पैर को तोड़ के फेंक दिया गया था। तब से मुझे लगा कि लड़कियों को ट्रेनिंग ज़्यादा देने की जरूरत है, और इसीलिए कोई भी अधर्मी गन दिखा के, चाकू दिखा के, डरा के, धमका के, ग्रुप में आके उसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस लेवल की हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि इस ट्रेनिंग में हर एक बच्ची आए, ना हम यहाँ पे जात देख रहे हैं ना धर्म दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी अधर्मी जात धर्म देख के कुछ करता नहीं है। इसलिए सारे धर्म के बच्चों को हम चाहते हैं कि वो सतर्क बने। जिस तरह से नहाना जरूरी है, खाना जरूरी है, हमारा कपड़ा जरूरी है, उसी तरह से हमारा जिंदा रहना जरूरी है, और जिंदा रहने के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है। सेल्फ डिफेंस के साथ साथ कहने में तो सोशल मीडिया भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं ये जो लड़कियां हैं सोशल मीडिया पे वीडियो बनाती है, ऐसे बहुत से इफेक्ट जो है नए नए आते हैं, तो इसके लेके ये लोग एक अनोखा पहल करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मोबाइल एक्टिविटी कितनी जरूरी, किस तरीके ये लोग को अभिप्राय दिया जाए? सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आपको बच्चों को खुद पता रहता है, क्या आप अपना जिस्म दिखा के सोशल मीडिया पे फॉलोअर दिखा रहे हैं? ये 100% रॉन्ग है, गलत है, ये कहीं ना कहीं खड्डे में जाने वाला है। एक तरफ हमारे आप देख सकते हैं कि परिणति बिश्नोई है, और 13 साल की लड़की है, पूरे इंडिया को जाके ट्रेनिंग दे रही है, योगा टीचर है। हमें सीखना चाहिए। 14 साल की लड़की है जो नासा ने उसको सिलेक्ट कर लिया है, अपनी टीम में ले लिया है, 14 साल की लड़की है। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया भी खराब नहीं है, लेकिन रॉन्ग वे में जाओगे तो खराब ही है। आप गाड़ी चलाओगे, राइट हैंड पे चलना है, दाने चलो तो मोड़ दोगे, बिना इंडिकेटर दिखा के मोड़ दोगे, दारू पी के अगर गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट होना ही है। सोशल मीडिया सेम है, आप अगर समझ के सोशल मीडिया यूज करोगे 100% ये अच्छी प्लेटफॉर्म है, कोई खराब नहीं है। लेकिन आप इसमें नशे में होकर अगर इसका यूज करोगे तो एक दिन आपको जरूर इसमें खड्डे में जाना पड़ेगा। सर, बात की कि जरूर खड्डे में जाना होगा। जिस तरीके से युवान जो है माता पिता के साथ जितना रहता है उससे ज्यादा स्कूल में वक्त बिताता है, टीचर द्वारा इन लोग को किस तरीके की पहल दी जाती है? देखिए, मेरी कोशिश है कि मैं खुद एक टीचर ट्रेनर हूं, और मेरी कोशिश रहेगी कि स्कूल में भी मैंने सर से बोला हुआ है कि जो टीचर्स हैं उनका मैं एक दिन जरूर ट्रेनिंग लूंगा। इसमें मेरे पास बहुत सारी टिप्स हैं सिखाने के लिए, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी हमारे पास मटेरियल है, जिसमें हम बच्चों को बचपन से, क्योंकि बच्चे होते हैं जो कोरा कागज होते हैं, उसके दिमाग में जो हम डालेंगे वही बच्चे के अंदर रहेगा। तो सोशल मीडिया के बारे में उसको अवेयर करना जरूरी है, रॉन्ग वे में जाना जरूरी नहीं है। बहुत सारी चीज है जिससे हम अपना मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन आई हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव की गई हैं, गवर्नमेंट ने खुद लॉन्च की है, कि वो अगर हम रखें मोबाइल के अंदर तो हम देख सकते हैं कि बच्चा क्या यूज कर रहा है, क्या देख रहा है, इससे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि माँ बाप इतने अवेयर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से बच्चों के लिए ट्रेनिंग होती है, ट्यूशन क्लास होता है, डांस क्लास होता है, ड्राइंग क्लास होता है, सारे क्लासेस होते हैं, वैसे ही माँ बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए एक पेरेंटिंग सेमिनार, एक पेरेंटिंग क्लास होना चाहिए, जिससे परवरिश कैसे करें उस तरह का एक ट्रेनर भी होना चाहिए। तो मैं कोशिश जे प्रमाणे बात करी कि આજની તારીખમાં સેલ્ફ ડિફેન્સ જરૂર છે, સાથે સાથે કહી શકાય તો મોબાઈલ એક્ટિવિટી છે તે પણ જરૂર છે, અને ક્યાંક ને ક્યાંક કહી શકાય તો આજની જે યુવતીઓ જે છે સોશિયલ મીડિયામાં વધારે ધ્યાન આપતી હોય છે, પરંતુ ટીચર દ્વારા જે છે એક નવી પહેલ પણ શરૂ કરવામાં આવી છે કે સેલ્ફ ડિફેન્સ બહુ જરૂરી છે। કેમ કે ક્યાંક ને ક્યાંક જે પ્રમાણે માર્કેટમાં જતા હોય છે, કોઈ શોપિંગ મોલમાં જતા હોય છે, તો છેડતી થતી હોય છે, તેને લઈને પોતાની સુરક્ષા કઈ રીતની કરવી અને પોતાને
નિર્ભય કઈ રીતના બનાવવો તે પણ એક અહીંયા સ્કૂલ દ્વારા જે છે ને નવી પહેલ શરૂ કરવામાં આવી છે અને આ જે માતા પિતા છે તે લોકોને પણ પોતાના બાળક પર ધ્યાન આપવું જોઈએ અને આજે આજના સમયમાં જે પ્રમાણે છોકરીઓ સાથે છેડતી થાય છે તેમજ કહી શકાય કે આજે ક્યાંક ને ક્યાંક કિડનેપિંગના પણ કિસ્સા બનતા હોય છે અને લઈ જતા હોય છે તે લોકોને જે છે સતર્ક બનવું બહુ જરૂરી છે તે એક કૃષ્ણા સ્કૂલ દ્વારા કરવામાં આવી છે અને આ છેલ્લા 2012 જે છે આ સાહેબ દ્વારા એક નવી પહેલ શરૂ કરવામાં આવી છે 51 લાખ બાળક જે છે તે લોકોને સુરક્ષિત બનાવીને કહી શકાય તો એક આર્મી મેન બનાવવાનું પોતાના ઘરમાં જ એક આર્મી મેન હોય તેવું પણ એક નવી પહેલ શરૂ કરવામાં આવી છે। કેમેરામેન અરુણ સાથે રિપોર્ટર કૃષ્ણ સોની સુરત। સાથે આજનો શું કાર્યક્રમ? मेरा नाम मुकेश राठौड़ है और निर्भया सेना का संस्थापक हूँ। खुशी इस बात की है कि झोलवा का हमारा पहला एक कार्यक्रम था जिसमें हमने एक आयोजन किया था कि करीबन 170 से ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया। मैं शुक्रगुजार हूँ क्रांति सर का जो प्रिंसिपल है हमारे कृष्णा स्कूल झोलवा के। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ एक यंग के अंदर जो ऊर्जा होती है उसका लाभ सबको मिलता है। अगर कोई प्रिंसिपल यंग है तो उसके डिसीजन भी तुरंत होते हैं। तो ये बच्चों की हमारी जब पहली मुलाकात हुई और पहली मुलाकात में इसकी परमिशन मिली और उनकी वजह से हम ये कार्यक्रम कर पाए। और मैं सभी स्कूल्स को भी ये कहना चाहता हूँ कि जितना पढ़ाई जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी आज के डेट में हमें सेल्फ डिफेंस सिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने कई केस ऐसे देखे हैं कि वो डॉक्टर तक बनी, उसने मेहनत की, 20 साल 25 साल पढ़ाई की, पता लगा उसका रेप हो गया, उसका मर्डर हो गया। तो बच्चों को ये ट्रेनिंग देना बहुत ही जरूरी है। हमने अपने कोर्स में खासकर रखा है कि अगर लड़की के पास पेन है, मोबाइल है, दुपट्टा है, हेयरपिन जैसी चीजों को वो हथियार कैसे बना सकती है। कोई भी व्यक्ति अगर उसे गन दिखा के डराने की कोशिश करे तो पॉसिबल नहीं है कि उसे डरा सके। और सबसे बड़ी बात है कि चाकू हो या फिर गन हो, इससे वो डरने वाली अब है नहीं, क्योंकि ऐसी ट्रिक मैंने बताई है कि कोई भी लड़की आसानी से उससे बचाव कर सकती है। हमने ध्यान रखा है कि हमारे इंडिया का बहुत बड़ा आंकड़ा खराब चल रहा है, क्योंकि हर 8 सेकंड में एक लड़की एक बच्चा हमारा गायब हो रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने बच्चों को ये ट्रिक सिखाई है कि अगर कोई किडनैपर उसे उठाने की कोशिश करता है तो वो 5 मिनट 10 मिनट वो कैसे उसको होल्ड कर सकता है, कैसे उससे बचाव कर सकता है, इसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। और झोलवा विस्तार जो है, कड़ोदरा विस्तार है, यहाँ पे कई मध्यम वर्ग के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनको दोनों टाइम जाना पड़ता है, ड्यूटी करना पड़ता है, हस्बैंड और वाइफ को दोनों को करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए क्राइम जो ज्यादा घटना घटती है, जो क्रिमिनल्स होते हैं ऐसे मौके का तलाश में होते हैं कि मम्मी पापा नहीं होते, तो वो सिचुएशन में बच्चा कैसे अपनी खुद की सेफ्टी करे, ऐसा हमने इसको पूरा डिजाइन करके बच्चों को सिखा रहे हैं। निर्भया सेना पूरे इंडिया में काम कर रहा है। हमारा लक्ष्य जो 51 लाख का जरूर है, लेकिन हमारी सोच एक ही है कि मेरी ट्रिक की वजह से किसी एक लड़की ने भी अपनी इज्जत बचा ली, जान बचा ली, तो हम समझेंगे कि हमारी मेहनत सफल हुई है। और ये हम पूरे पैन इंडिया के ऊपर एक काम कर रहे हैं। जिस तरह से क्रांति सर का सपोर्ट मिला है, ऐसे ही हमारे प्रिंसिपल के और सपोर्ट मिलेंगे, ऐसे हम आशा करते हैं। और ये पॉसिबल नहीं है, कई स्कूलों में टाल मटोल भी होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रिंसिपल स्कूल के अंदर बहुत ही फास्ट डिसीजन हो, जैसे क्रांति सर का डिसीजन रहता है। उन्होंने कदम कदम पे निर्भया सेना के साथ खड़े रहे हैं, हर जगह उन्होंने हमें पूरी तरह से सपोर्ट किया है। तो ऐसे स्कूल्स होना बहुत जरूरी है, स्कूल के साथ में ऐसे प्रिंसिपल भी होना बहुत जरूरी है। सेल्फ डिफेंस के साथ साथ मोबाइल एक्टिविटी कितनी जरूरी? देखिए, मोबाइल खराब नहीं है। आज हम तो मैं और आप जुड़ रहे हैं तो मोबाइल की वजह से जुड़ रहे हैं। कई बेटियां, अभी आपने देखा होगा कि 14 साल की लड़की, 13 से 14 साल की लड़की जो अहमदाबाद की है, उसको अभी नासा ने उसको सिलेक्ट कर लिया है। 14 साल की बच्ची, उसने ज्यादा ट्रेनिंग ली है, मोबाइल से ली है। मेरा कहने का मतलब है मोबाइल खराब नहीं होता है, ना मोबाइल खराब है। मोबाइल को जब तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल बहुत अच्छा है। मोबाइल हमको इस्तेमाल करने लगता है, वो गलत हो जाता है। तो मोबाइल को इस्तेमाल कैसे करना है, बच्चों को सिखाना जरूरी है। हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, ये सिखाना जरूरी है। और मैं चाहता हूं कि हर एक स्कूल में एक पेरेंटिंग सेमिनार होना बहुत जरूरी है कि बच्चों के साथ वो कैसा व्यवहार करें, कैसे वो बच्चों के साथ रहें, कैसे प्रिंसिपल के साथ रहें, कैसे टीचर के साथ रहें। ज्यादातर ये होता है कि अगर टीचर थोड़ा डांट देता है तो तुरंत कंप्लेंट लेके आ जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि पेरेंट्स और टीचर्स मिलके हम बच्चे के ऊपर ध्यान रख सकते हैं, तभी हम आगे जा पाएंगे। मोबाइल एक बहुत बड़ा इशू है हमारे देश के अंदर, तो मोबाइल को हम मिलके बच्चों को समझा सकते हैं कि कितना यूज करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। संभव है, लेकिन इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। सर, बात की कहीं ना कहीं माता पिता से ज्यादा स्कूल में जो है शिष्य जो है कैसे होता है क्योंकि टीचर्स के पास रहता है, इसके द्वारा क्या शिक्षा भी में आ जाते हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी द्वारा। देखिए, मैं खुद एक कह सकते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, और खासकर मैं जो शिक्षक होते हैं, मैं टीचर ट्रेनिंग लेता हूँ कि स्कूल को कैसे मेंटेन करना चाहिए, स्कूल में कैसे पढ़ाना चाहिए। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो स्कूल के अंदर कई मैंने टेक्निक ऐसी सिखाई हैं
कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी एज 5-6 साल 7 साल की एज है या 10 साल के नीचे एज है, तो कई टेक्निक्स हैं इसको समझाने की कि हम स्कूल में जाके क्लास में जाके, जैसे अभी आपने कई वीडियो देखे होंगे कि उन्होंने पट्टी बांध रखी है, थोड़ा सा रेड कलर डाल दिया है, तो और बताया गया बच्चों को, इनको क्या हुआ कि इन्होंने ज्यादा मोबाइल देखा तो इनकी आंखें खराब हो गई, ऑपरेशन हो गए, बच्चे डर गए। अभी वो टीचर दूसरे बच्चे को दे दे बेटा मोबाइल यूज करो तो डर रहा है, नहीं मैं नहीं करूंगा, आंखें खराब हो जाएंगी। तो ऐसी कई चीजें हैं कि बच्चों को हम अपने स्तर पे उसको हम समझा सकते हैं हर चीज का इस्तेमाल सही है या गलत है। सर, अभी तक आपने कितनी स्कूलों में ट्रेनिंग ले चुके हैं? देखिए, मैं 2012 से एक्टिव हुआ था जब दिल्ली में गैंगरेप हुआ था। ये कहना मुश्किल है थोड़ा, लेकिन मैं कह सकता हूँ करीबन करीबन अभी तक मैंने 2,500 से 3,000 स्कूलों में मैंने ट्रेनिंग दी है। और अगर मैं सोसाइटी की बात करूं तो इससे भी ज्यादा आंकड़ा है कि मैं लगातार 12 साल से 12 अभी तो 13 साल लग गया है, 13 साल से लगातार, क्योंकि मुझे वो दिन याद है 16 दिसंबर को लड़की के साथ रेप हुआ था दिल्ली में और 29 दिसंबर 2012 में उसका डेथ हो गया था। तभी से मैंने संकल्प लिया था कि मैं कम से कम 51 लाख लड़कियों को ट्रेनिंग दूंगा और तभी मैंने सूरत में स्टार्ट किया। आनंदीबेन पटेल तभी तत्कालीन मुख्यमंत्री थी, उनके हाथ से 1.5 लाख लड़कियों का मैंने संकल्प लिया था, वो संकल्प पूरा किया और अब मैंने 51 लाख का संकल्प लिया हुआ है, जो 22 लाख से ज्यादा हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। और बात करें तो ये अभी हमने एक ऐसा स्टेप लिया है कि हम लड़कियों को सिखा रहे हैं और एक वो मंत्र दे रहे हैं, एक लड़की सीखेगी और 5 लड़कियों को सिखाएगी, ये मंत्र दे रहे हैं और इसके माध्यम से हमारे पास सैकड़ों लड़की अब जुड़ रही हैं। और हमने अपनी निर्भया सेना के माध्यम से उनको पुरस्कार रखा हुआ है कि एक लड़की 5 लड़कियों को अगर वो समझो उनको समझाती है, लेके आती है, तो उसको हम लोग छोटा सा पोस्ट दे देते हैं जिसका नाम है मॉनिटर, और मॉनिटर से वो कैप्टन बनती है तो हम लोग पुरस्कार उसको 51,000 का दे रहे हैं, फिर 2.5 लाख रुपए का भी दे रहे हैं, 5.5 लाख का भी दे रहे हैं, ऐसे पुरस्कार भी दे रहे हैं जिससे बच्चियां ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जुड़ सके और ज्यादा से ज्यादा हम छोटे छोटे घर में, छोटे छोटे कस्बे में हम ले सकें। मेरी कोशिश है कि हम इसको खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन जो अपराध की जो दरें बढ़ रही हैं या रेप केसेस की बढ़ रही है, किडनैप की बढ़ रही है, उसको हम सब मिलकर कर सकते हैं। हमारा सबसे बड़ी गलती हमारी ये है कि हम सारा का सारा काम पुलिस प्रशासन करेगा, नेता करेगा, मुख्यमंत्री करेगा, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। देश का हर एक नागरिक अपने आप को सिपाही समझे, देश का हर एक नागरिक अपने आप को एक मिलिट्री मैन समझे, उसकी जवाबदारी है कि जहां तक वो काम कर सकता है वो काम करे, सोसाइटी के लिए काम करे, केवल अपने परिवार के लिए अपने लिए काम ना करे। कोशिश करे कि 24 घंटे में से कम 1 घंटा सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए काम करे। मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, कई लोग कर रहे हैं, ये मेरी सोच है और इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सभी बच्चों को हमारी तरफ से खूब धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ पर बैठ के जो कार्यक्रम को आकार दिया है। यहाँ के प्रिंसिपल सर और ये जो टीम बनी है, इनका खूब अच्छी तरह से बढ़ावा है कि आपके आज के बच्चों को इसकी शिक्षा जरूर चाहिए। तो कहीं भी अकेले घूमते हैं, कहीं भी जाते रहते हैं, तो अपनी सेफ्टी कैसे करना चाहिए, इसके बारे में आपने बहुत अच्छा सोचा है सर। और बच्चों को खास बोलता हूं, लड़कों, मैं आगे स्कूल में गया था, वहां पे मैंने जो गाइड किया है उसमें मैं आपको खास कह के बोलता हूं कि पहले गुरु आपके माँ बाप होते हैं और माँ बाप आपको कभी बुरा नहीं सिखाएंगे। कुछ गलत करोगे तो आपको 2 शब्द बोलेंगे, आपको गुस्सा आएगा, लेकिन गुस्से में ऐसा कोई कदम मत उठाओ कि कल उठ के आपके माँ बाप को रोना पड़े। दूसरे गुरु है आपके शिक्षक, जहां पे आप पढ़ाई करते हो, वो भी आपको डबल, मतलब माँ बाप को सिखाते हैं, उससे ज्यादा बढ़ के आपको कुछ जब दुनिया का सब गाइड करते हैं कि भाई आपको पढ़ना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। और हम तो यहाँ पे शायद मुझे सब जानते होंगे, मैं घूमता रहता हूँ, तो मेरा ये कहना है कि मैं आते जाते बच्चों को देखते रहता हूँ, वो साइकिल पे जाता है, वो बाइक पे जाता है, तो आप अपने हिसाब से चलिए। जो गाड़ी आपको पिताजी देते हैं वो आपको तकलीफ ना पड़े इसलिए आपके लिए देते हैं। इसका कारण ये नहीं कि आप उसको किसी भी तरह से चलाओ। अगर आपको कुछ होता है, एक्सीडेंट होता है, बीच में हमारे पास आए थे, बच्चे ही थे जो एक्सीडेंट हुआ था, बराबर, तो ऐसे मत करो कि आपको जो गाड़ी आप चलाते हो ना, तो जैसे घर से निकलो तो हेलीकॉप्टर की तरह निकलते हो, ये गलत है बच्चों। आपके परिवार, आपके माँ बाप आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं, ना ही के कोई जगह पे आपको कुछ होता है तो पहले दर्द उनको होता है और बाद में आपको होता है। आपका गर्म जोश है, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी बच्चे बाइक लेके घूमते हैं,
अपने हिसाब से गाड़ियां चलाओ, गलत तरीके से नहीं। पहली दूसरी बात कि आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। आपको फिर वो पुलिस पकड़ती है तो बताते हो कि सर हमारे तो पास ये है वो है। एक गलत गलत बात करके आप डिस्टर्ब होते हो और कानून को भी डिस्टर्ब करते हो। तो पहले आपकी उम्र हो जाए, आप लाइसेंस निकालिए, बाद में गाड़ी लेते आप जाओ। दूसरी बात, हेलमेट पहनना जरूरी है। आप कहीं भी निकलते हो घर से बाहर हाईवे पे तो हेलमेट आपका जरूरी है। हेलमेट जो होता है ना वो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क होता है ना, उस तरह से आपका शरीर जो होता है दिमाग का सेफ्टी है। मतलब आपका दिमाग जो है कंप्यूटर की तरह हार्ड डिस्क है, अगर वो डैमेज हो गया तो आपका पूरा शरीर डैमेज हो जाएगा। इसलिए हेलमेट जो सरकार ने बताया है हेलमेट पहनना जरूरी है, वो आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के लिए है। समझ में आ रहा है मैं बता रहा हूं तो? ये अपना दिमाग जहां पे लग जाएगा तो पूरा शरीर आपका हैंडीकैप हो सकता है, या बच्चे गुजर भी जाते हैं। तो हमारे पास तो बहुत किस्से आते हैं और एक्सीडेंट होते रहते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बिना वजह बाइक लेके ना निकले, और निकलो तो हेलमेट पहन के निकलना। मारू नाम गोरखभाई बाविस्कर, पलसाણા तालुका होमगार्ड इंचार्ज ऑफिसर कमांडिंग। સર આજરોજ પધાર્યા છો સેલ્ફ ડિફેન્સને લગતા કાયદાઓ જે છે તે સ્કૂલ દ્વારા કરવામાં આવે છે, શું કહેશો? નહીં, ખરેખર આ સારું કહેવાય કે સ્કૂલ દ્વારા નિર્ભય દ્વારા છોકરીઓ માટે પોતાનો આત્મરક્ષણ માટે જે આ સ્ટ્રીક શીખવવામાં આવે છે એ ખરેખર સ્કૂલ દ્વારા સારું કામ છે ને એના માટે અમને અહીંયા બોલાવેલા હતા ને છોકરાઓને આનાથી ઘણું ખરું પોતાનું રક્ષણ કરવા માટેનું જે એ બતાવવામાં આવે છે એમના માટે સારું છે। છોકરાઓને અત્યારે કિડનેપિંગ થઈ જાય છે, છેડતીઓ થાય છે છોકરીઓને, અને છોકરીઓ આના થકી પોતાનું રક્ષા કરી શકે છે। એ બાબતનું ખરેખર ખૂબ સરસ આયોજન છે। સર કહેવામાં આવે છે ક્યાંક ને ક્યાંક હાલ આપ પોલીસ ખાતામાં એવા કિસ્સાઓ ક્યાંક ને ક્યાંક સામે આવતા હોય છે, શું સંદેશ આપવા માંગે છો પરિવારજનને જ કહેવા માંગે છે કે તમે આજે સ્કૂલ દ્વારા જે આયોજન કરવામાં આવે છે એમાં પોતાની છોકરીઓને ને છોકરાઓને શિક્ષણ માટે તમે પ્રેરિત કરો અને પોતાના બાળકોને મોબાઈલથી થોડું દૂર રાખો, જેથી કરીને આ રમત રમતા રમતા ને આ શીખે તો પોતાની રક્ષા કઈ રીતે કરવાનું એમના માટે બહુ ખૂબ સરસ છે।